Good morning, children. In our last class, we have finished 7.5 exercise with addition of fractions having same denominators. I hope you have understood all those concepts. Today, I'm going to explain subtraction of fractions with the same denominator. So first of all, we will learn its formula. So difference of two fractions with same denominator is equal to difference of the numerator divided by common denominator. एडिशन के केस में क्या था? एडिशन ऑफ न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर. और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमिरेटर और डिफरेंस ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. So its formula is difference of the numerator divided by common denominator. So first of all, we will solve examples on page number 85 to understand this concept. So open your maths books on page number 85. Write down date and day on this page number. So statement is subtract 3/8 from 7/8. तो 7/8 में से हमने 3/8 माइनस करना है. We can write it as 7/8 minus 3/8. So formula is difference of the numerator and common denominator. This formula can be applied only in that case when there is common denominator. जब common denominator उसी केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. कॉमन डिनोमिनेटर 8 है तो न्यूमिनेटर कितना है? 7 और 3. इनका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन माइनस 7 minus 3 4 divided by 8. So this is our answer. Fine. Similarly, we will solve example number 2. Let us solve second example. State subtract 4/13 from 9/13. So first of all, we will write 9/13, then sign of subtraction. माइनस का साइन आएगा, then 4/13. Then we will apply formula. Common denominator, difference of numerator. 9 minus 4 5. 5/13 is our answer. Right? Now I am going to solve sum number first of exercise 7.6. So first is subtract. I am going to solve part A. 6/13 minus 2/13. स्टूडेंट्स इस केस में हमें स्टेटमेंट ऐसे नहीं गिवन कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है विद नेगेटिव साइन, तो हम इसको आगे पीछे करके नहीं लिखेंगे. सो वी विल यूज फॉर्मूला common denominator and subtraction numerator and difference of numerator. So it's 6 minus 2 4 upon 13. So 4/13 is our answer. Now part B, 4/11 minus 2/11. 11 is common. Yes, it's common denominator and we will subtract numerator. 4 minus 2 2/11. Clear? Now I am going to solve part C. 9/16 minus 8/16. So 16 as it is, 9 minus 8, which is equal to 1/16, which is our answer. Right? Now I am going to solve its D part. 9/31 minus 2/31. 31 is common denominator and we will subtract numerators. 9 minus 2 7/31. Right? Which is our answer. Fine. Now part E, 15/23 minus 11/23. Common denominator is 23, numerator 15 and 11. We will subtract these two numerators. 15 minus 11, 4/23. This is our answer. Right? So students, I have solved part A, B, C, D and E of sum number first. And you will solve part F, G, H and I. You will solve 4 parts of sum number 1. Now I am going to solve second sum. I will solve this sum in books.
सो स्टूडेंट सेकंड सम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज वॉच दीज सम्स केयरफुली. 12/15 माइनस -15 इज इक्वल टू 9/15. तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है. यस. तो अब 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए. विच नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 9. 12 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए. तो वी विल सब्ट्रैक्ट. आप इन दोनों को भी माइनस करके देख सकते हो. 12 माइनस 9 3. सो 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा. यस. सो वी विल राइट 3 इन दिस बॉक्स. सेकेंड, 8/11 minus 4 dash is equal to 4/11. It's so simple. Denominator should be same. So that's why we will put 11 here. Right? तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ भी 11 को पुट करेंगे. सी 5/7 माइनस -7 which is equal to 2/7. 7 is a common denominator which is clear. Now what is to be subtracted from 5 to get 2? 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 2 आए. 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3. 5 minus 3 is equal to 2. Right? So students, I have solved part A, B and C of second sum, and you will solve part D, E and F in your books. Right? So I have done addition and subtraction of same denominator concepts. I hope you have understood all these concepts. Right ना, कि हमने सेम डिनोमिनेटर के साथ एडिशन भी किया है, सेम डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्शन भी किया है. Fine. Do practice of solving addition and subtraction having same denominator. Our next exercise 7.7 is based upon different denominators. For this, we should know how to solve LCM. So today, we will learn one another method of solving LCM. तो आज हम LCM सॉल्व करने का एक और मेथड सीखेंगे जो हमने पहले मेथड कर चुके हैं. दैट अ लिटिल बिट लेंथी. सो टुडे वी विल लर्न another method of LCM. So watch and understand LCM attentively. Right? Now students, our next topic is addition and subtraction of fractions with different denominators. So write down date and day on page number 86. Fine. So this concept is based upon different denominators. तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम करने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ये अलग अलग डिनोमिनेटर्स पर बेस्ड हैं. बिफोर सॉल्विंग दीज सम्स वी शुड नो हाउ टू सॉल्व एलसीएम इन सिंपल वे. तो पहले मैं फर्स्ट मेथड सॉल्व करके दिखा रही हूँ जो हम पहले कर चुके हैं. एलसीएम ऑफ 9 and 6. तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 6. फाइन. 9 के मैंने मल्टीपल लिखे हैं 5 एंड 6 के मल्टीपल मैंने 6 लिखे हैं. देन वी विल सॉल्व कॉमन मल्टीपल्स. तो वी विल फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल. तो इनमें से कॉमन कौन से थे, 18 and 36. बट LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज लीस्ट आउट ऑफ 2. 18 इज लीस्ट. तो सबसे छोटा कौन सा था, 18. तो LCM में हम वो नंबर लेते हैं जो कॉमन मल्टीपल का लीस्ट नंबर हो, सबसे छोटा हो. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व LCM बाय अनदर मेथड. तो एक और मेथड LCM का, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू डू दिस, वी विल ड्रॉ दीज 2 लाइन्स लाइक दिस. तो हम इस फॉर्म में लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे 2. फर्स्ट ऊपर लिखेंगे 9, फिर कॉमा और फिर 6. ये 2 नंबर लिख लिए जो हम जिसका हमने एलसीएम सॉल्व करना है. राइट. तो इन नंबर्स का हमने वो कॉमन नंबर सर्च करना है, वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिस पर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके. तो 3 के टेबल में आते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. तो 3 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9. तो 9 को 3 से डिवाइड करके लिखेंगे यहाँ. 3 3 ज़ा 9, 9 के नीचे. देन पुट कॉमा. 3 2 ज़ा 6.
फाइन। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, और डिवाइड करके भी लिख सकते हो 9 को 3 से किया 3, 6 को 3 से किया 2, राइट। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग नंबर है, तो किसी एक नंबर पे ये नहीं डिवाइड हो सकते। सो वी विल यूज 3, 3 1 ज़ार 3, कॉमा 2 एज इट इज लिखेंगे। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते 3 2 नहीं, इसको एज इट इज रखोगे। देन वी विल यूज 2, 1 एज इट इज, 2 के टेबल में आता है वंस, 1 पे। देन वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, आप इसको भी कर सकते हो अगर कोई नंबर है, लेकिन यहाँ 1 है तो आप अवॉइड कर सकते हो। 3 3 ज़ार 9 इंटू 2 18, सो दिस इज आर LCM। फाइन, सो LCM is 18, right? Now I am going to solve one more example of 3 numbers. तो 3 नंबर लेके हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। LCM of 5, 4 and 20 and 20. First step is to draw these cross lines. Then we will put numbers 5, 4 and 20. देन हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे जिस पर ये दोनों या तीनों नंबर डिवाइड हो सके। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या दो नंबर डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ जो नंबर लेने हैं अपने प्राइम नंबर यूज़ करोगे, राइट। 2 इज़ लीस्ट प्राइम नंबर, यस। 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10, ये डिवाइड करके लिखा हुआ है, राइट। अब फिर से 2 पे कर सकते हो, 5 एज इट इज, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 5, तो 5 का टेबल यूज करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5। तो जब 1 आ जाता है तब तक उसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई 2, जो इस साइड वाले नंबर हैं, 2 2 into 5, 2 into 2 4 into 5 20, so 20 is our LCM. This is simple method. Now I am going to solve example number first, part B. तो फर्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट बी सॉल्व कर रही हूँ मैं। 5/4 प्लस 3/8, सो दीज आर टू डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो वी विल यूज LCM, वी विल सॉल्व LCM ऑफ 4 and 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस लाइन से। 4 and 8, तो हम लीस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 एज इट इज़, फिर 1 एज इट इज़। आप ऐसे कॉमा की प्लेस पे ये हाइफन भी डाल सकते हो। नाउ LCM 2 into 2 into 2 which is equal to 8, so LCM is 8, right? Now LCM is 8. Now what will we do to solve these fractions? क्या करेंगे अब हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू